پیش کرتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں، نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اس زبان نے کلام مقدس کو پورا حفظ کیا ہے، اس زبان نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہے، اس زبان نے اسی زبان سے رسول اللہ کی سیرت میں نے دہرائی ہے، اسی زبان سے میں نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اسی زبان سے میں نے اچھے لوگوں کا نام لیا ہے، اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی کلمات بولتا ہوں۔ اس لیے میرا دل نہیں چاہتا کہ ان دو لوگوں کا نام لے کر کے اپنی زبان کو گندی کروں، لیکن ایک شبد میں اشاروں میں سمجھتے جائیے گا۔ 2 سال سے یہی شبد کرتا ہوں، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کی سرزمین میں آیا ہوں کہ اس ملک کو صرف 2 لوگوں نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے، ایک کا نام ہے ٹکلا، دوسرے کا نام ہے بے عقلا۔ نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ ٹکلا اور بے عقلا کا کمبینیشن جو ہے یہ ہندوستان کو خراب کر کے رکھا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جب بھارت کے سمویدھان سے محبت کرنے والے لوگ، جب ملک کو بچانے والے لوگ اس ملک کی سرزمین تاج ہے، میں یہ بات آپ کو ایک ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحاج دولت میاں کو جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے، کون کہتا ہے کہ نام کا اثر نہیں ہوتا؟ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ نام کا اگر اثر دیکھنا ہے تو الحاج دولت میاں سے ملیے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ بیچارے نے اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے کو بہت محنت، مشقت، پتا ماری، جگر کابی، سنگھرش اور بہت جد و جہد کے بعد اپنے بچوں کے خاص طور سے تعاون سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں انہیں اتنا نوازا ہے کہ مولانا عبد الرحمن فیضی صاحب نے فرمایا کہ ان کے بس کا نہیں ادارہ چلائے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ایک خاص طور سے روحانی قسم کا جذبہ ہے۔ لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے اگر آپ بات کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہے کہ اس طرح کے کئی ادارے اگر دل میں خلوص، خاص طور سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمانی جوش بھر دے تو کیا نہیں ہو جاتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ، جیسا میرے سامنے پریچے کرایا گیا ہے کہ اس طرح کے کئی ادارے الحاج دولت میاں صاحب بڑی آسانی سے ان کے صاحبزادے حکیم مومن صاحب بڑی آسانی سے اس طرح کے کئی ادارے چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بات میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی چلتے ہوئے مسافر کا کالر پکڑ کر کے اس سے پیسہ وصول لینا بہت آسان ہے، لیکن قوم کے مسائل کو لے کر وہ لوگ اور ہیں جو اپنے پنڈال کے لیے اور اپنی الگ الگ محفلوں کے لیے راست چلتے ہوئے مجبور اور بے بس مسافروں کو روک کر کے ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اسلام والے، کتاب و سنت کے دائی جو خاص طور سے دل سے اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، الحاج دولت میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، لیکن صرف قوم کے اس ادارے کو سینچنے کے لیے، قوم کے اس ادارے کو ترقی کے شیخر پہ پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے دامن محبت پھیلا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کی بنیاد محبت پہ رکھی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کی بنیاد صبر پہ رکھی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کی بنیاد خلوص نیت پہ رکھی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کے اندر یہاں کے دولت میاں کے ساتھ ان کے دوست اور احباب کا خلوص، ان کا پسینہ شامل ہے۔ اس لیے صاحب اگر آپ 10 روپیہ دے رہے ہیں یا 5 روپیہ دے رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ کبھی کبھی انسان دھوکے دھرے میں بھی کچھ ایسا کر جاتا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن کرتا ہے۔ لیکن صاحب یہ دنیا ہے، جب کسی انسان کو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ تاریخ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ غریبوں کی جھولی میں پیسہ ڈالنے والے لوگ سیلفی لیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو 100 روپیہ دیا ہے، لیکن یہ ادارے جو خالص اسلامی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے ہے، آپ بڑی خاموشی سے پیسہ آ کر کے دے رہے ہیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حشر اور نشر کا میدان ہوگا، ایسا میدان جس کے تصور سے ایک مومن کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں اگر سوچ لیجئے تو شاید آپ راتوں کو نہ سو پائے، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ جیسی میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر قسم رب ذوالجلال کی اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے نبی کونین نے کہا تھا کہ میں نے، میری آنکھوں نے جن مناظر کو دیکھا ہے، قسم رب ذوالجلال کی اگر تم دیکھ لو تو پھر
जाओगे तुम्हारी आंखें आंसू बरसाएंगी। दोस्तों, ऐसी जगह पर जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप खड़े होंगे, आपके दामन में कोई नेकी नहीं होगा, आप दूसरे गुनहगार लोगों की तरह परेशान होंगे। अचानक से आपका ये 5 रुपया चीख पड़ेगा, अचानक से आपका ये 100 रुपया चीख पड़ेगा, अचानक से आपका ये 500 रुपया बोल पड़ेगा। अल्लाह, रात का वक्त था, रात की तारीकी थी, दुनिया सो रही थी, ये बंदा सिर्फ तेरे लिए आया था। अल्लाह, ये बंदा सिर्फ तेरी राह में देने के लिए आया था। पैसे इसने बहुत कमाए, अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदे, अपना बिल्डिंग और मकान भी बनाया, लेकिन ये जो पैसा दिया था, यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये पैसे बोलेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम, ये अमल बोलेगा कि मालिके कौनो मका, ये देने वाला शख्स खालिस नियत के साथ सिर्फ तेरी रजा और खुशनुदी के लिए, सिर्फ तुझे खुश करने के लिए इसने पैसा दिया था। मालिके कौनो मका कहेगा, मालिके मोहब्बत, बल्कि मैं ये कहूं कि रब्बे जुल जलाल की रहमत का दामन कब वसी हो जाए अल्लाह तबारक व तआला का कि जोशे रहमत आप देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी। कहा जाएगा फरिश्तों से कि जाओ इसे जन्नत में डाल दो। सोचने की बात यह है कि उस वक्त आपकी अंदर जो खुशी का एहसास होगा वो जज्बा कैसा होगा। मामूली बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं, बच्चा थोड़ा सा कामयाब होता है, हाथ में प्राइज मिलता है, खुशी से उसके चेहरे पे तबस्सुम की लकीरें फैल जाती हैं, घर आता है, माँ बाप को बताता है, पूरा परिवार खुशी से झूम रहा होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस वक्त खालिक़े कायनात, जर्रे जर्रे का मालिक जब आपके सामने में आपके इस अमल का इनाम देगा, उस वक्त कितने फख्र का मकाम होगा। दुनिया देख रही होगी, लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे को तो मैंने कभी अच्छे से नेकी करते हुए नहीं देखा, अल्लाह को कौन सी अदा इसकी पसंद आ गई है। वो मालिक है, खालिक़े कुल है, उसे कोई एक अदा भी अगर पसंद आ जाए तो पता चला कि एक ज़ानिया के एक अमल को अच्छी नेकी की वजह से अल्लाह चाहे तो जन्नत दे दे, और अगर अल्लाह ना चाहे तो जिंदगी के सारे अमाल को गारत कर दे। ये अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, उसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। मेरे दोस्तों, ये इदारा आपका है, ये जामिया आपका है, इलाका आपका है, इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपकी है, इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। बहरे सूरत ये चंद तमहीदी बातें थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आप लोग इस तरह के इदारों में अपनी मोहब्बत लुटाते हैं तो कल होकर के आपके बीच से आपका बच्चा जमील अख्तर शफीक बन के सामने आता है, जरजीज अंसारी बन के सामने आते हैं, अब्दुल रहमान फैजी बन के सामने आते हैं। इस तरह के लोग जब आते हैं तब आपको लगता है कि आपके कौम की आवाज बन गई है। ये चंद तमहीदी बातें थी जो आपको, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं इतनी सोबतें झेल कर 2-3 रातों का जागा हुआ था, लेकिन पता चला कि इस इलाके में पहली मर्तबा इजलास का इनकाद हो रहा है। मदरसा इमाम नसई के ज़ेरे एहतमाम ये पहला अज़ीमुश्शान इजलास है। मेरे दिल ने आवाज दी कि एक दीनी इदारे का प्रोग्राम है, मैं चाहता तो नजरे अंदाज भी कर सकता था, इग्नोर भी कर सकता था, मुख्तलिफ मसरूफियतों से भरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन दिल ने ये गवाही दी कौम के बच्चे पढ़ेंगे, हमारे मदारिस के फारिगीन वहाँ पे तदरीस का काम अंजाम देंगे। जमील अख्तर शफीक, तुम भी उन्हीं 4 दीवारियों की बीच से निकले हुए हो, थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन उन मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच जाओ और जाकर के अपने जज्बे को, अपने दर्द को सामने रखो। ये तमहीदी बातें थी जिस जज्बे से मैं आपके बीच आया। मैं ये चाहता हूँ, मुझे आपको देखने के बाद किसी शायर का 4 मिसरा याद आता है कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म शौक है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो लोग चले गए मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो लोग चले गए होंगे उनसे इसलिए शिकायत नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बैठे हुए हैं उस वक्त भी प्रोग्राम सुनने वाले लोग उतने ही थे जो इस वक्त मौजूद हैं। आइए मैं 4 मिसरे से आपकी खिदमत करूँ, इसलिए खिदमत चाहता तो दूसरे अंदाज में भी कर सकता था, लेकिन ये 4 मिसरे मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से इन इदारों को और भी सींचने की इसलिए भी जरूरत है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आप ये देख रहे हैं
पहले मजहबी मामले में, धार्मिक मामले में अगर कोई हिंदू है तो पंडित इस मामले को सुलझाता था, अगर कोई मुसलमान है तो मौलाना इस मामले को सुलझाते थे, अगर कोई पारसी है तो पारसी का आलिम इसको सुलझाता था, अगर कोई क्रिश्चियन है तो पादरी इसको देखता था, अगर कोई सिख है तो उसका कोई धर्म गुरु देखता था। लेकिन ये पहली मर्तबा भारत में ऐसा हो रहा है कि आपकी मजहब को आड़ बना करके, मजहब को हथियार बना करके ये मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। आपकी लाशों पे खड़े होकर के एक ऐसे हिंदुस्तान का तस्वुर आपके सामने पेश किया जा रहा है जो हिंदुस्तान अगर फ्यूचर में हमारे सामने होगा तो यकीन जानिए कि अम्बेडकर की रूह चीख पड़ेगी, भारत का संविधान मलियामेट हो जाएगा। और ऐसे मौके पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने रास्ते में आते हुए मुझे लगा कि मुझे ये 4 मिसरा पेश करना चाहिए। आपको लगे कि आपके जज्बों को अगर आवाज दी गई है तो आप मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा, इसलिए कि इन जलसों और कॉन्फ्रेंसों में आपके दर्द को शब्द देने वाले मुझ जैसे लोग दरअसल अपने सर पे कफन बांध करके चलते हैं, इसलिए कि आप बहुत मर्तबा सोचते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा बोला जाना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जाना चाहिए। हम लोग जब बोल करके निकलते हैं आसपास के माहौल से अलर्ट रहते हैं, अंदाजा लगता है पता नहीं कौन सा कमबख्त दुश्मनी निकाल करके हमारे पीछे पड़ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे उसे बचा ले, अल्लाह तबारक व तआला जिसे ना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मुझे 4 मिसरा याद आता है ऐसे मौके पर जब मेरे पैर कपकपाते हैं, जर्जीस अंसारी जैसे लोगों का कलेजा जब दहलता है तो मुझे वो 4 मिसरा याद आता है कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। 4 मिसरे पेश करता हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं। मैं किसके लिए कह रहा हूं? मैं अक्सर व बेशतर एक जुमला कहता हूं, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि इस जबान ने कलामे मुकद्दस को पूरा हिफ्ज़ किया है, इस जबान ने हदीस की किताबें पढ़ी है, इस जबान ने इसी जबान से रसूलुल्लाह की सीरत मैंने दोहराई है, इसी जबान से मैंने अखलाक की तालीम दी है, इसी जबान से मैंने अच्छे लोगों का नाम लिया है, इसी जबान से अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती कलमात बोलता हूँ। इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि उन 2 लोगों का नाम लेकर के अपनी जबान को गंदी करूं, लेकिन एक शब्द में इशारों में समझते जाइएगा। 2 साल से यही शब्द करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, आपकी सरजमीन में आया हूं कि इस मुल्क को सिर्फ 2 लोगों ने खराब करके रखा हुआ है। एक का नाम है टकला, दूसरे का नाम है बेअक्ला। नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार लोग हैं। ये टकला और बेअक्ला का कॉम्बिनेशन जो है ये हिंदुस्तान को खराब करके रखा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जब भारत के संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग, जब मुल्क को बचाने वाले लोग, इस मुल्क की सरजमीन को अपने लहू से सींचने वाले लोग जब तक साथ रहेंगे, सिख और ईसाई। अभी मैं रास्ते में आ रहा था ट्रेन में, एक साहब से बात हो रही थी गैर मुस्लिम, कहने लगे क्या बताऊं, हम लोग भी हुकूमत से बहुत ज्यादा दुखी है। मैंने उनसे कहा कि साहब ये अलग बात है कि ये लोग हिंदू और मुसलमान कहते हैं और अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन आप देखते नहीं कि ये ट्रेन है, हम लोग सवारी में जा रहे हैं, इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कोई तिलक लगाए हुआ है, इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कोई टोपी पहना हुआ है, इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कोई दाढ़ी रखे हुआ है, इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कोई मुझ जैसा अगर आदमी है तो कोट पहने हुआ है, इस ट्रेन में कोई गरीब बेचारा मैला सा अंगूठा लगाए हुआ है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है अल्लामा इकबाल की जबान में कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मैंने कहा यहाँ पे सीट पर बैठने वाला आदमी देखने वाले आदमी की लियाकत नहीं देखता, उसकी पर्सनालिटी नहीं देखता, सीट खाली है बैठ जाता है, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा क्यों नहीं हो, चाहे हुकूमत वक्त का कोई बहुत ज्यादा सोर्स और पैरवी वाला आदमी क्यों नहीं हो, बैठ जाता है। हम लोग साथ साथ मिलकर के चल रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। बगल में जमील अख्तर शफीक भी जा रहा है, बगल में रामदेव भी जा रहा है, यहाँ मनोवर सिंह भी जा रहे हैं और ये हिंदुस्तान खूबसूरत लगता है। मैंने उनसे कहा दरअसल इस सुंदर हिंदुस्तान की यही कल्पना की जा सकती है, लेकिन ये भगवाधारी लोग क्या कर रहे हैं आपकी आंखें देख रही हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शायरी इशारे
इशारे इशारे में बात करता जाऊंगा और आप समझते जाइएगा। ये 4 मिसरा मुझे लगता है कि पेश करना चाहिए, मुलाहिजा फरमाइए। कहता है कोई करचे के मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है। ये पहला मिसरा कितने लोगों को अच्छा लगा? मैं ये चाहता हूं कि आप सपोर्ट करने के लिए अपना दाएं हाथ हवा में लहरा के मुझे बताइए कि ये पहला मिसरा आपको अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को भी हाथ अल्लाह ने दिया है तो आप हाथ उठा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथों को सलामत रखे। मुझे पता है कि बड़े शरीफ लोग रामपुर में आए हैं, कोई किसी के पॉकेट में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालने जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथों को सलामत रखे। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। कहता है कोई गरचे के मजबूर नहीं है, मजबूर। ये देखिए बच्चे, अल्लाह ताला सलामत रखे। जब हमारे कौम के ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जब इनाम लेने लगते हैं तो मुझे एक शेर याद आता है कि अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा, बच्चा खिलौना खेलेगा, ये बम बनाएगा। छोटे से इन बच्चों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इल्म व अमल का बड़ा बनाए। 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। और फिर डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब जो आपके कौम और समाज और माशरे के बड़े खिदमतगार हैं, मैं उन तक पहुंचूंगा। उनके कह सकता हूं मैं कि आप उनके ताव पे नहीं बल्कि भाव पे जाइएगा। बड़े कौम के बही खां हमारे बीच बैठे हैं। सुबह से जितना मुंतजिमीन जलसा ने कॉल नहीं किया है, उससे ज्यादा हमारे डॉक्टर साहब परेशान थे कि जमील साहब बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए। मैं इनकी मोहब्बत की कदर करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है तो तादम हयात बाकी रखे, बल्कि हश्र के मैदान तक बाकी रखे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। कहता है कोई गरचे के मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है। कहते हैं कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ा बढ़ाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। मुल्क लुटता जा रहा है, पेट्रोल की कीमत कहां से कहां भाग गई। बेचारा गरीब जो चंद पैसे इकट्ठे करके बाइक पे चलने की हिम्मत और जुर्रत जुटाता था, आज की ताकत में वो पैदल चलने का इरादा कर रहा है। ये हिंदुस्तान को तरक्की दे रहे हैं। पहचानिए इन्हें। वक्त आने पर जब ऐसे लोग आपके बीच आए तो आपको किस चीज से इस्तकबाल करना है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हो क्या रहा है ये 4 मिसरे पे समझिएगा। मैं किसी पार्टी दल का आदमी नहीं हूं, किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी से हमारा कोई जायज और नाजायज ताल्लुक नहीं है कि आप ये कहेंगे कि किसी पार्टी के हक में बोल रहा हूं तो किसी के सपोर्ट में बोल रहा हूं। अगर हमारे सामने अगर मेरा बाप भी गलत करेगा, मेरे सामने खड़ा होगा तो इतनी जुर्रत रखता हूं कि उसकी आंखों में आंखें डालकर थोड़े अदब को मलबूज रखे ये कहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं। और यही इस्लाम और मुसलमान और खालिस भारत के संविधान से मोहब्बत करने का यही जज्बा होना चाहिए, यही शौक होना चाहिए कि सामने चाहे जो भी हो, अगर गलत हो तो आपके अंदर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए कि जब कोई कौम हिम्मत होती है तो पैरों से चूंटी की तरह कुचल दी जाती है। इस बात को याद रखना। ये 4 मिसरे पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। कहता है कोई गरचे के मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है। कहता है कोई गरचे के मजबूर नहीं है, खुशी रह के कोई शख्स भी मामूर नहीं है। और अगले शेर पर आपकी दुआएं चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। कहता है कोई गरचे के मजबूर नहीं है, खुश रह के कोई शख्स भी मामूर नहीं है। सर कटता है कट जाए, जा जाती है जाए। सर कटता है कट जाए, जा
हुकूमत हमें मंजूर नहीं है, जालिम की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। हजरत चार मिसरे और पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। ये चार मिसरे आप नौजवानों के नाम, कभी कभी आपको शब्द न मिले, अल्फाज न मिले, तो जमील अख्तर शफीक के ये चार मिसरे याद रखना, शायद आपको काम आ जाए। बहुत आसान शब्दों में शायरी करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि सिर्फ आप खुश न रहें, बल्कि आप एक संदेश, एक मैसेज और एक पैगाम लेकर के जाएं। चार मिसरे पेश करता हूँ, आपका ईमानी जज्बा जोश मारे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाइए। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हर दम चौंक कर बोलो। मुझे एक बड़ी तादाद बरहेट के इदारे में पढ़ने और निकलने वाले बच्चों की थी, जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि शेख कब आ रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं जिन बच्चों के लिए पढ़ता हूं, जिन बच्चों के लिए आवाज देता हूं, जिन बच्चों के लिए कभी कभी खतरों से खेलकर हक बोलने की कोशिश करता हूं, मुझे ये खुशी है कि मैं उन कौम के नई नस्ल की पीढ़ी के दिलों पे दस्तक दे रहा हूं। अगर ये बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लाखों की पूंजी उन बच्चों की मोहब्बत के सामने कम है। एक बच्चा था, बरहेट में पढ़ता था, उसे मुझे पता चला था कि कैंसर हो गया। मेरे अंदर से मेरी रूह कांपी, मैंने कॉल किया था। एक लंबा वक्त हो गया जब उस बच्चे ने, मैं बैठने के बाद मुस्कुराते हुए जब उसने सलाम किया है, शायद मैं उन शब्दों को बोलूंगा तो आपके पास रो पड़ूंगा और आप मेरे आंसू को रोक नहीं पाएंगे। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, हसास आदमी हूँ। मुझे याद आता है अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को अगर मौत की गोद से बचा लिया है तो मैं दिल की गहराइयों से रब्बे जुल जलाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐ मालिके कौनो मका, अगर तेरी मेहरबानियां ना होती, अगर तेरी अताएं ना होती, तेरा रहम और करम नहीं होता, दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस अगर लग जाती, उस बच्चे की जान नहीं बच सकती थी। ये तो सिर्फ एक हवाला बनते हैं। अल्लाह जिसे चाहे उसे क्या ना हो जाए, अल्लाह चाहे मौत की गोद से निकाल ले, और अगर अल्लाह ना चाहे चलता हुआ आदमी फिसल जाए और उसकी मौत हो जाए। आपने कोविड में सुना नहीं कि साहब फलाने आदमी सुबह मिले थे, शाम में उनकी रूह परवाज कर गई। मैंने उस बच्चे को देखा है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए हैं। दिल चाहता था कि कलेजे से लगाकर उसके फूट करके मैं रो पड़ूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब मैं रो पड़ता हूं तो मेरे आंसू रुक नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों की आंखों में बहुत जल्द आंसू नहीं उतरते हैं, जान लीजिए कि उन लोगों ने मुसीबत और मुश्किलात की इतनी भट्टियां देखी हैं कि उनके आंसू खुश्क हो जाते हैं। मुझे कभी एक शेर याद आया था, मैंने कभी बशीर बद्र ने एक शेर कहा था कि मेरी आंखें किसी के आंसू हैं, मेरी आंखें किसी के आंसू हैं, वरना इन पत्थरों में आग कहां, आप पानी को बोलते हैं, वरना इन पत्थर में पानी कहां है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्तकबिल में भी उस बच्चे को पूरे तौर पर कौम का खादिम बनाए और तमाम तर शुरूर और फतन से, मुसीबतों से उसे महफूज रखे। मैं उन तमाम आने वाले मदारिस और जामियात के निकले हुए बच्चे, पढ़ने वाले छोटे छोटे वारिसीने अंबिया की खिदमत में ये चार मिसरे रखता हूं और आप लोगों की भी यहाँ से आए हुए लोगों की दुआएं चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाइए। हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हर दम चौंक कर बोलो, जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, जियोगे कब तलक डर डर के यूं बातिल परस्तों से, अगर तुम
حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھونک کر بولو، اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھونک کر بولو، ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو۔ حضرات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں لیٹ سے آیا ہوں تو شاید یہ پہلے ٹرم کا کام میں نے آپ کے لیے انجام دے دیا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بھاگ رہا ہے، الحمدللہ موسم بدل گیا، ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ راستے میں جو گرمی پڑ رہی ہے، اگر رات میں بھی گرمی پڑی آپ لوگ تو جا کے اپنے گھر میں سو جائیں گے، ہم کل ہو کر کے پھر کہیں یہ محفل سجائیں گے، دن میں آدھی نیند پوری کریں گے نہیں کریں گے، اسی طریقے سے یہ معاملہ کب تک چلتا رہتا ہے پتہ نہیں۔ اسی لیے عام طور پہ لوگ مولانا سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، خاص طور سے بوڑھے اور ضعیف لوگوں سے جو ہمارے قوم کے بزرگ لوگ ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بھی دعائیں کریں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی صف میں بھی بیٹھے ہوئے اگر کسی کی دعا سن لے، عبادت کس کا معتبر ہے یہ میرا لباس نہیں طے کرے گا، عبادت کس کا معتبر ہے کسی کی قمیض طے نہیں کرتی، عبادت کس کا معتبر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ طے کرتا ہے، اور وہ سجدہ کتنا معتبر ہے یہ رب ذوالجلال طے کرتا ہے۔ آئیے چلتے چلاتے میں انشاءاللہ، اور بھی میرے سامنے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جب جب کہیے گا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، انشاءاللہ آیا ہوں جی کھول کر کے آپ کی خدمت کروں گا۔ اس لیے میں نے کچھ زیادہ وقت لیا تاکہ منتظمین جلسہ کو یہ شکایت نہ ہو کہ لیٹ سے آئے اور 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے چلے گئے، جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کی بات 2 منٹ میں کیسے کی جاتی ہے۔ میں شارٹ سنٹینس بھی جانتا ہوں، لانگ سنٹینس بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا پچھلے 14-15 سالوں سے باضابطہ طور پہ جرنلزم سے، پترکارتا سے میرا تعلق ہے۔ بہرحال میں آپ کے بیچ، آپ کے علاقے میں آپ کی محبت پہ لبیک کہتے ہوئے سرزمین کلکتہ سے چل کر کے یہاں پہ تشریف لائے ڈاکٹر جابر حسین صاحب، جو انتہائی معتبر، معمر اور نیک خو آدمی ہے، قوم کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ عمر کے اس حصے میں الحمدللہ اگر پتا چلے کہیں بھی آپ محبت سے آواز دے دے، یہ اپنے تکلفات، تصنعات، تمام تر پرابلمز کو بھول کر وہ دعوت پہ چلے آتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔